एंड माई ब्रदर वुड गेट हिज अपॉर्चुनिटी, कह रहे हैं कि और उसके बाद माई ब्रदर, मेरे बड़े भाई, वुड गेट, मौका पाते, अपॉर्चुनिटी, एकदम सुअवसर, अति उत्तम अवसर पाते, किस बात के लिए? धौंस जमाने के लिए, डांटने के लिए, हड़काने के लिए। अपॉर्चुनिटी टू एडमोनिश एंड सरमोनाइज। एडमोनिश मीन्स होता है डांटना, टू चाइल्ड, टू रिब्यूक, बुरा भला कहना, टू मेक अंडरस्टैंड, एंड सरमोनाइज मीन्स होता है उपदेश देना, ऐसे करो वैसे करो, नहीं बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, कंगाल हो जाओगे, दैट इज कॉल्ड सरमोनाइज। यानी ये कह रहे हैं कि जब मैं फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने निकल जाता, उसके बाद मेरे बड़े भाई को अवसर मिलता, खूब बढ़िया मौका मिलता, और फिर तो वो स्टार्ट हो जाते, और एक बार स्टार्ट होते तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। यानी वो मुझे डांटते, ढेर सारी उल्टी सीधी भली बुरी बातें कहते और ढेर सारे उपदेश देते, और वह सब चीजें इन वैन होती, मीन्स वो व्यर्थ होती, मेरे लिए केवल बोरिंग और पकाऊ होती। मीन्स narrator is saying that due to his attraction towards the game and like volleyball, football, he started to avoid from first day his timetable which had been prepared by him for his study, and the attraction of the football and volleyball dragged him outside from his room from the hostel, and narrator could not control himself from avoiding the timetable and coming into the field to play the football. And thus, as soon as he came out, as soon as did he come out from his hostel to play the football, and this time his elder brother got opportunity to chide, to give lot of preach, that is to sermonize him, and thus narrator is saying that how again his elder brother did get opportunity to rebuke, to chide him. Clear? Yes, sir. Okay, good boy. Even then I was not able to give up play. Even then means yet, फिर भी narrator कह रहे हैं कि after getting lot of scolding and sermonizing words, narrator was unable in giving up his habit, playing habit. He never could become interested in his study than his game. अपने गेम में हमेशा व्यस्त रहा और गेम की तुलना में अपने स्टडी में कभी इंटरेस्टेड नहीं हो सका. क्लियर? Yes, sir. Can there are how many students are on live class? Yeah. 12. 12? 13. 13 है. ओके, चलो शुक्रिया है, धन्यवाद है कि कम से कम 13 तो आए आप लोग. नेक्स्ट पैरा, द एनुअल एग्जामिनेशंस एंडेड. कह रहे हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन यानी जो सालाना एग्जाम था, दैट वाज एंडेड, सालाना एग्जाम भी खत्म हो गया. माय ब्रदर फेल्ड, और इनके बड़े भैया फेल हो गए फिर से. एंड आई पास्ड, और मैं पास हो गया. यानी कह रहे हैं कि एनुअल एग्जाम केम टू एंड, रिजल्ट पास्ड आउट, केम आउट, and his elder brother failed in the same class, but the narrator, he who was scolded, lot of scolded by his brother, that narrator passed in his class in 1 year, और उसके भाई फेल हो गए. Securing the first position in the class, narrator also secured first position, not only passed but secured first position in the whole class, but his elder brother failed, who used to scold the narrator. Now he was just 2 classes ahead of me. Narrator is saying that now after becoming fail in the same class and after passing in the first division of the narrator became just behind class of his brother, and now his brother was just 2 class ahead rather than the 3 class, because in earlier passage we have read that his brother was ahead of 3 class from his brother, that is narrator, but elder brother failed and narrator passed. Then his elder brother was only 2 class ahead from his younger brother, that is from the narrator story writer. Clear? Clear? Yes, sir.
For a moment I thought of giving him a piece of my mind. कह रहे हैं narrator से for a moment means little bit time, क्षण भर के लिए. I thought means narrator started to think of giving, देने के बारे में, about to give him a piece of my mind. A piece of my mind, piece of mind means little bit portion of his mind. यानी नरेटर कह रहा है कि जब मेरा भाई फेल हो गया, मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, तो नरेटर कह रहा है कि मैं थोड़े समय के लिए सोचा कि क्यों ना अपने मूर्ख यानी कम बुद्धि वाले भाई को अपना इंटेलिजेंट माइंड दे दूं, ताकि वो भी अगले साल पढ़कर पास हो जाए, थोड़ा बढ़िया से पढ़ने सोचने लगे. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. But he was so heartbroken. But लेकिन he was so heartbroken. Means after becoming fail in the same class, his elder brother was in the great despondency. Heartbroken means दिल टूटा हुआ, मन टूटा हुआ, हताश, despondent. तो कह रहा है कि after becoming fail in the same class, narrators या writers elder brother was totally in the despondent, totally in the negative situation. That I sincerely sympathized with him. इतना था दुखी फेल होने वाला भाई कि अंत में उसे देख करके इसको राइटर को अपने भाई से सहानुभूति हो गई, या उसके से सहानुभूति व्यक्त करने लगा. एंड आई गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्फ स्टीम. सेल्फ स्टीम मीन्स होता है सेल्फ रेस्पेक्ट. और उसके बाद जब ये सहानुभूति व्यक्त कर ली अपने भाई से, तो उसके बाद इनके मन में एक एहसास होने लगा, और वह एहसास था सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान, आत्म रेस्पेक्ट जिसे कहते हैं, आत्मानुभूति. इन्हें बहुत अच्छा लगा था कि हमें पास हो गया. I began to practice freely in games and sports. कह रहे हैं कि after passing in first division in my class, now summer vacation started anyhow. Narrator started to play freely in the open field for football and volleyball. If he tried to meddle, I would tell him plainly, I have obtained the following. करें कि if he tried to meddle, MEDDLE, meddle means होता है to interrupt, दखल देना, रोक टोक करना. तो नरेटर कह रहे हैं कि whenever writer went to play in the field and whenever his elder brother started to interrupt him, started to scold him not to play, then narrator used to memorize him in simple word that he had obtained the first position even while playing and having fun. जब भी उसका भाई डांटता कि अरे तुम क्या कर रहे हो, चलो पढ़ो, क्यों खेल रहे हो, तब ये तुरंत साफ आवाज में कहता कि अरे पिछली साल भी तो मैं खेल के और मौज मस्ती करके फर्स्ट डिवीजन आया था, तो क्या जरूरत है ज्यादा पढ़ने की, मैं खेल के फिर भी पढ़ लूंगा, पास हो जाऊंगा. Even though I had not the courage to speak out with such insolence. Insolence means होता है such behavior which does not give respectful or dignity or recognition to other person. जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मानपूर्ण शब्द नहीं बोलते हो, तो वो जो होता है वह इंसोलेंस कहलाता है. मीन्स सच बिहेवियर ऑफ एनीवन अबाउट वन दैट डज नॉट शो एनी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम. ऐसा शब्द जो कि दूसरे की तरफ कोई सम्मान न व्यक्त करे, वह शब्द इंसोलेंस कहलाता है. तो कह रहा है कि मैं तो अपने भाई से ऐसे कह देता, लेकिन फिर भी मुझ में यह करेज नहीं था कि मैं अपने भाई से इंसोलेंस, इतना बुरा व्यवहार करूं, इतना रफ लैंग्वेज में बात करूं. It was clear from my demeanor and actions. DEMEANOUR. demeanor means होता है behavior. कह रहे हैं कि मेरे अपने पर्सनल व्यवहार से और जो मेरा एक्शन था उससे यह क्लियर था. Miss Narrator is saying that through the outer behavior and action of the narrator, it was clear that he could not insult or he could not reply in insulting way to his brother. यानी वह अपमानित, कड़े, रूखे शब्दों में अपने भाई को कोई जवाब दे दे, यह संभव नहीं था, और यह साफ परिलक्षित था राइटर के बाहरी हाव भाव व तौर तरीकों से. One day, एक दिन, when I returned after spending the whole morning playing. कह रहे हैं कि one day what happened? Narrator spent the whole morning day, that is before noon, in playing. खेल में उसने पूरा दिन दोपहर तक का बिता दिया, मतलब दोपहर से पहले का.
पूरी की पूरी सुबह। माई ब्रदर पाउंस्ड अपॉन मी, पाउंस POUNCE, पाउंस में होता है झपट्टा मारना, जैसे बिल्ली चूहे पे मारती है। तो यही ये कह रहे हैं नरेटर कि जब मैं आया तो उसी तरह से मेरे भाई ने मुझ पे झपट्टा मारा। माई भाई अटैक्ड सडनली एंड टुक इन हिज ग्रास्प मी। I can see you have become very smug because you have secured the first position. Smug means होता है एकदम स्वेच्छाचारी, आवारा, लुच्चा, अकर्मण्य, निठल्ला, जो कभी किसी के कहने में ना हो। तो कह रहे हैं कि one day after playing whole morning in the open field, when narrator returned just back to his home, suddenly his elder brother started to chide and rebuke him and announced that now narrator has become smug, that is of rough behavior, of the disobedience behavior, only due to securing the first position in the class. Clear? Yes, sir. इसी में से दिया है, समझ लेना। अगर गलत हुआ तो फिर बुद्धि ठीक कर दूंगा, नकल उकल मत करना। सर कहाँ से चीटिंग करेंगे? चीटर नहीं है। अरे क्या कहते हो बेटू, चीटर नहीं हो। मौका मिले और आर्यमा चीटिंग ना करेंगे तो हो ही नहीं सकता। चलिए ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। बट माई ब्रदर pride has not served well even the greats. You must have read about the fate of Ravan. He was the master of the whole earth, called the universal king. Ravan was a universal king because all the kings of the world paid taxes to him. Even the gods of love and rain were his slaves. And yet what was his pride totally destroyed him. What have you learned from his story? Narrator कह रहे हैं कि when his brother started to chide him, he started to give sermonize lot of good ideas to the narrator, and what he started to say the brother that don't forget Ravana. He was the most powerful king of the universe in his time. Even all the kings belonging to earth, heaven, all used to pay taxes to him. Everyone used to abide by his orders. Yet what happened with him? One day he was killed by God only due to his pride. Then he asked with his brother, you must learn from the story of Ravana, that is pride makes destroy everyone. मतलब नरेटर कह रहे हैं कि मेरे भाई अचानक गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम पहली पोजीशन लाके जितने घमंड में हो, आवारों की तरह घूम रहे हो, हमें जवाब दे रहे हो। मत भूलो कि तुमसे बड़ा रावण था, पूरे यूनिवर्स का मालिक था, सब राजा महाराजा देवता उससे डरते थे, उसके दास थे, उसका कहना मानते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वह भी मर गया। यानी ये कह रहे हैं कि यह मत भूलो, वह मरा क्यों? अपने घमंड के कारण। यानी घमंड करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। यानी तुम भी घमंड कर रहे हो फर्स्ट पोजीशन का, तो इस साल गड़बड़ हो जाएगा, फेल हो सकते हो, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए घमंड छोड़ो और स्टडी में लग जाओ। To have passed an examination is not enough. नरेटर्स ब्रदर, बड़े भाई कह रहे हैं कि to have passed, सिर्फ पास कर लेना जो है एग्जामिनेशन, इज नॉट इनफ, बढ़िया सफिशियंट नहीं है। द रियल थिंग इज द एक्विजिशन ऑफ विजडम। कह रहे कि पास करना बड़ी बात नहीं, रट के पास कर लोगे। बताओ व्हाट इज द रियल थिंग ऑफ एजुकेशन, सेंस ऑफ एजुकेशन? टू रिसीव एक्विजिशन ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता, तार्किकता। यानी रट के पढ़ के पास जाओगे मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? समझ, समाज की परिस्थितियों की समझ तुम रखो तब तुम शिक्षित कहलाओगे। टू इंटरनलाइज व्हाट एवर यू स्टडी। इंटरनलाइज का मतलब होता है टू मेक कनेक्शन। जो कुछ तुम पढ़े उस चीज को आपस में कनेक्ट करके उसका रीजनेबल आंसर निकाल सको, उसके बारे में रीजनेबल चीज सोच सको। हेलो, दैट इज कॉल्ड स्टडी। You have passed only one class and your head has turned. नरेटर्स के बड़े भाई नरेटर के राइटर के कह रहे हैं कि तुम एक क्लास का पास किए, यूज हेड टर्न, यानी तुम्हारा सर ही एकदम ऊंचा उठ गया है, इतना घमंड हो गया है तुम्हें। दिस इज नॉट गुड, योर दिस प्राउड विड मेक लूज यू।
अगर तुम्हें घमंड है तो यही घमंड तुम्हारा एक दिन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इस बात का घमंड मत करो। पास होना बड़ी बात नहीं है, बहुत पास हुए हैं। In this way you would not go very far. Go very far, FAR far, दूर, far means दूर। कह रहा है कि in this way means like this, इस तरह से। You would not go very far, तुम बहुत दूर तक ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। You must realize that you did not pass through your hard work. नरेटर कह रहे हैं कि you must realize, तुम्हें एक दिन जरूर अनुभव होगा, that you must not, you did not pass through your hard work, कि तुम अपने हार्ड वर्क के चलते नहीं पास हुए। पास हो गए हो लेकिन हार्ड वर्क के चलते नहीं पास हुए हो। It was a fluke. It was a fluke, FLUKE, फ्लूक मीन्स होता है लक। कह रहे हैं कि दिस वाज योर लक दैट यू पास। नरेटर का बड़ा भाई कह रहे हैं तुम पास हो गए तो घमंड है ना, तो ये जान लो कि हार्ड वर्क से नहीं पास हुए हो, यह तुम्हारा भाग्य था कि तुम पास हो गए हो, वरना तुम जैसे गधे तो कई कई साल सड़ते रह जाते हैं, आवारे हो। Sometimes a person plays a big stroke by chance. बड़े भाई कहते हैं कि कभी कदार क्या होता है कि एक व्यक्ति बाई चांस, दैट इज बाई लक, भाग्य से क्या होता है बड़े बड़े चीजें हासिल कर लेता है, बड़े बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेता है, लेकिन वह भाग्य होता है, उसका अपना कर्म नहीं। बट दैट डज नॉट मेक हिम अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन वह भाग्य भले जिता देता है लेकिन उसे एक महान खिलाड़ी नहीं बनाता। महान खिलाड़ी बनने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सफल व्यक्ति बनने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ऐसा हो सकेगा। You will know when you come to my class. आगे भाई कहते बड़े कि ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम मेरे क्लास में आओगे, यानी मुझसे तुम क्लास में तुमसे आगे हो ना, जब मैं मेरे क्लास में तुम आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना खोया है। You will sweat, SWEAT, sweat मीन्स होता है पसीना। तो कह रहा है कि you will sweat, तुम्हें पसीना पसीना हो जाएगा। Between your teeth when you will have to crack the tough nuts of geometry and algebra. Crack the tough nuts का मतलब होता है कठिन कठिन, hard and hard। कह रहा है कि तुम्हें यह रियलाइज तब होगा हार्ड वर्क का जब तुम मेरे क्लास में आओगे और वहाँ पे क्रैक द नट्स का मतलब कि कठिन कठिन सवाल सॉल्व करने होंगे मैथ के, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हार्ड वर्क क्या होता है। गॉड एलोन सेव यू फ्रॉम जियोमेट्री, कह रहा कि गॉड एलोन, भगवान अकेले, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही तुम्हें जियोमेट्री से, गणित से बचा सकते हैं। इफ यू रोट ACB फॉर ABC, कह रहा है आगे कि इफ यू रोट, यदि तुम लिखते हो ACB, A फॉर ABC, यानी ABC लिखना है और उसकी जगह तुमने ACB लिख दिया गणित में, यू वुड लूज ऑल द मार्क्स, तो तुम्हारे सारे नंबर कट जाएंगे। यानी तुम गणित में रंच मात्र भी मिस्टेक किए तो सारे नंबर कट जाएंगे, तुम फेल हो जाओगे। नो वन केयर्स टू आस्क दिस क्रूएल एग्जामिनर्स, नो वन केयर्स, किसी की हिम्मत नहीं होती कि ये दिस क्रूएल एग्जामिनर्स के जो काफी जांचने वाले होते हैं निर्दयी, इनसे कहे एज टू व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ACB एंड ABC, कोई उनसे पूछे कहे कि अरे सर ACB लिखो चाहे ABC लिखो, उसमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है तो दोनों सेम ही। किसी की हिम्मत नहीं होती, एग्जामिनर अपने मन से नंबर काटता है और एग्जामिनर फिर अपने मन से ही नंबर हटा देता है। एंड व्हाई दे टॉर्चर स्टूडेंट्स फॉर दिस वर्थलेस थिंग्स, और कोई यह नहीं कहता कि इतनी छोटी सी रंच मात्र चीज के लिए क्यों वो एग्जामिनर बच्चों को टॉर्चर करते हैं, उनका नंबर काटते हैं। बट दिस एग्जामिनर्स सी ओनली व्हाट इज रिटन इन द बुक्स, कह रहे हैं कि ये एग्जामिनर केवल क्या करते हैं तो जो बुक में लिखा होता है वही देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नंबर देते हैं। दे वांट स्टूडेंट्स टू क्रैम एवरीथिंग एंड दिस क्रैमिंग इज कॉल्ड एजुकेशन, कह रहे हैं कि क्योंकि वे टीचर चाहते हैं कि स्टूडेंट जो क्रैम यानी बार बार इसमें रगड़े घिसें, इसे रटें, इसी में एकदम बोर हो जाए घिस घिस के, और यही घिसना जो है एग्जामिनर के द्वारा स्टूडेंट्स का, यही जो है स्टडी यानी एजुकेशन, शिक्षा कहलाती है। क्लियर? हेलो, क्लियर? Okay. They ask you to write an essay on the importance of punctuality, which should not be less than 4 pages in length. Narrator Sildar is saying that examiners and teachers
used to ask make writing, used to ask to write the writing, that is essay on the importance of the punctuality and another topic, and when students starts to write then it takes length of the 4 pages, that is the boring time, boring and boring। बड़े भाई कह रहे हैं कि ये एग्जामिनर्स और टीचर्स जो हैं बच्चों को 4 पेज का ऐसे लिखने को कह देते हैं, बच्चे लिखते हैं, लिखते लिखते पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। Who does not know that punctuality is a good thing, कह रहा है राइटर का भाई, बड़े भाई, कि हर कोई जानता है कि पंक्चुअलिटी इज अ गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है। इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन योर लाइफ, पीपल बिगिन टू लव यू एंड यू प्रोग्रेस इन योर बिजनेस। कह रहे हैं कि पंक्चुअलिटी से क्या होता है, लोग तुम्हें लव करने लगते हैं, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे जॉब में उन्नति आती है। हाउ टू राइट 4 पेजेज ऑन सच अ सिंपल इश्यू, कह रहा है कि अब जब सब लोग जानता है तो इस छोटी सी चीज पे, पंक्चुअलिटी पे 4 पेज कैसे लिखा जा सकता है। फिर भी नरेटर, राइटर और स्टूडेंट्स और टीचर जो हैं वो दे देते हैं कि इस पे 4 पेज लिखो। धीरे धीरे आ रही है बेटा आप में नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ तो साफ है, 500 KB पर सेकेंड चल रहा है। सही है सर। देखिए कुछ बच्चों को आ रहा है आवाज, आपका ना नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटू, उसे नेटवर्क की जगह पे जाओ, प्लीज गो टू नेटवर्क। हाउ टू राइट 4 पेजेस सिंपल, बट नो यू विल हैव टू ब्लैंकन 4 पेजेस। कह रहा है कि कैसे कोई लिख सकता है 4 पेज एक छोटी सी पंक्चुअलिटी पे, बट तुम्हें किसी भी तरह से 4 पेज भरने ही होते हैं, ये टीचर्स कराते हैं। एंड 4 फुल स्केप पेजेज, और कह रहा है कि वो 4 पेजेस भी क्या होते हैं, तो फुल स्केप, बड़े बड़े पेज होते हैं, ये नहीं कि इतने छोटे छोटे पेज हों, बड़े बड़े पेज होते हैं, उन चारों पेज को भरना होता है। वी शैल हैव टू फिल अप द 4 लॉन्ग पेजेस ऑन द लिमिटेड टॉपिक दैट इज पंक्चुअलिटी, बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द टीचर्स स्टूडेंट्स वुड हैव टू डू सो, करना होता है, करना पड़ता है। द वर्स्ट पार्ट इज, सबसे बुरी चीज यह है, यू आर टोल्ड टू बी ब्रीफ, सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें ब्रीफ, संक्षेप में लिखना होता है। यानी भाई कह रहा है कि आदेश ये होता है क्वेश्चन में कि एकदम ब्रीफ में, थोड़े में लिखो, लेकिन थोड़े में भी लिखो तो 4 पेज लिखो। अब बताओ जब 4 पेज हो गया तो थोड़ा कहाँ रह गया, लेकिन लिखना होता है। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन पंक्चुअलिटी नॉट लेस देन 4 पेजेस इन ब्रीफ, अदरवाइज दे माइट हैव आस्क्ड यू टू राइट 200 पेजेस। कि कम से कम संक्षेप में 4 पेज लिखो, नहीं तो अगर संक्षेप में, देखो सैटारिकल व्यंग कर रहा है, अगर आप ब्रीफ में नहीं लिखे तो आपको 200 पेज लिखने पड़ जाएंगे, 200 पेज। You may have to write 200 pages if you don't write in 4 pages in brief. 4 pages in brief, otherwise you may write 200 pages. Run fast but slowly. तेजी से भागो लेकिन धीरे धीरे लिखो, चलो। Is not that funny, my boy? When you come to my class, मेरे भाई जब तुम मेरे क्लास में आओगे, you will have to perform this Herculean labor. कह रहे हैं नरेटर के भाई कि मेरे छोटे भाई जब तुम मेरे क्लास में आओगे तब तुम्हें हरक्यूलियन लेबर, हरक्यूलियन एक बहादुर योद्धा था बहुत, तो उसी को ये फिगर ऑफ स्पीच में यूज करके नरेटर के भाई कह रहा है कि यह जो बहादुरी वाला कार्य है तुम्हें जब तुम मेरे क्लास में आओगे तो तुम्हें करना पड़ेगा। डोंट फ्लोट इन द एयर, फ्लोट मींस तैरना, हवा में मत उड़ो। जस्ट बिकॉज यू हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन दिस क्लास, सिर्फ इसलिए कि तुमने इस क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, इस चीज को लेकर तुम हवा में मत उड़ो। आई माइट हैव फेल्ड मेनी टाइम्स, आई माइट हैव फेल्ड मींस फेल हुआ होऊंगा कईयों बार। बट आई एम एल्डर देन यू, फिर भी मैं तुमसे बड़ा हूँ। एंड मोर एक्सपीरियंस्ड, और तुमसे ज्यादा अनुभव है। सो मार्क माई वर्ड्स और यू विल रिग्रेट लेटर, रिग्रेट मींस पश्चाताप करना। तो भाई कह रहे हैं कि भाई भले मैं 10 बार फेल हुआ हूँ हर क्लास में, लेकिन फिर भी तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरी बात को ध्यान दो, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो रिग्रेट पश्चाताप करना पड़ेगा लेटर बाद में, यानी कि तुमने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। एंड थ्रू दिस वे
your lesson stop. I stop here. Tomorrow I shall start to teach 15 and 16. Miss, tomorrow I shall complete my lesson. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, beta. Bye. Hi. Small j, small e, E for elephant, small c,